السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ پاک کو چھوڑو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور صحیح، پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، اللہ پاک تمہارے ساتھ ہے۔ ایک ہار پر ہر اس فتح کو بھول گئے ہو جس سے اللہ پاک نے تمہیں ہمکنار کیا ہے۔ اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور جہنسی کر لو کہ ہمارا رب ہر شے پر کامل ہے۔ جانتے ہو اللہ پاک تمہیں بے وسی کے مقامات پر کیوں لایا ہے، تاکہ تم اللہ پاک سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو جو چیزیں تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہیں اور جو چیزیں نصیب میں نہیں ہیں وہ بھی تم یقین سے پالو گے۔ صبر بہت مشکل ہے لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا کن سے خالی نہیں جائے گا۔ وہ خوب جانتا ہے کون کس حال میں ہے، وہ جانتا ہے کون بے بس اور کون صبر کی آخری انتہا پر ہے۔ اور یاد رکھو جتنا مشکل وقت ہوگا تم اتنا اس کو قریب پاؤ گے۔ بس ہمت نہ ہارنا، وہ کیا نہیں کر سکتا بتاؤ تم خود، وہ پالنے والا بڑا ہی کریم ہے۔ سب ہوگا، ہر دعا سنی اور قبول کی جائے گی۔ تم بس امید رکھنا اور صبر سے انتظار کرنا، اور آئے جب لمحے کٹھن مشکلوں کے، اے اللہ پاک میں راضی کر، تو راضی کہہ کر ان کو آسان بنا لو۔ ہوتا نہیں ہمیشہ جیسا تمہاری چاہت ہو، اس نہ ہونے میں بھی تم اس رب کی مصلحت پہچانو۔ طبق اپنا ایسا بناؤ کہ کچھ کھونے کے بعد بھی نہ پچھتاؤ۔ صبر بناؤ ایسا کہ روح چیرنے والی آزمائش میں بھی مسکراؤ۔ یہ کھیل ہے انگنت قربانیوں کا، ہر کوئی کہاں دیتا ہے۔ اللہ پاک کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ دیر ہو رہی ہے تو ضرور کچھ بہترین ملنے والا ہے۔ اگر کر رہے ہو صبر تو ضرور اس کا اجر ملنے والا ہے۔ ہو کر مایوس تم اگر پھر سے جینے میں آئے ہو تو ضرور تمہیں اس کا سہارا ملنے والا ہے۔ یقین رکھو اس ذات پر جو تو یقیناً وہ تمہارا دل خوش کرنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم ہمت رکھو، تمہیں تمہارے درد کا درد ملنے والا ہے۔ اگر مانگا ہے تم نے ایک قطرہ تو یقیناً تمہیں پورا سمندر ملنے والا ہے۔ چل رہے ہو بنا منزل کے جس راستے میں تم سکون رکھو، تمہیں اس کی رحمتوں کا اشارہ ملنے والا ہے۔ اللہ پاک حساب رکھتا ہے ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھے دل کے ساتھ صبر کر لیا تھا، جب تم نے نم آنکھوں کے ساتھ بھی ہنسنا نہیں چھوڑا تھا، جب اچانک لیٹے لیٹے ماضی کی تلخ یادوں نے دل دماغ بوجھل کر دیے تھے اور تم نے بے چین ہو کر کروٹ بدلی تھی، جب رات کو سوتے وقت آنسو تمہاری آنکھوں سے پھسل رہے تھے اور تم انجان تھے مگر اللہ پاک بے خبر نہیں تھا، جب کسی کے سخت جملوں نے تمہارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور تم مسکرا کر سہ گئے تھے۔ وہ تمہاری ہر اس تکلیف کا حساب رکھے ہے۔ تمہیں یہ وقت بھلے ہی مشکل لگ رہا ہے مگر تمہاری سب مشکلات کا حل بس اس کے ایک کن میں رکھا ہے۔ صبر کرنا جتنا مشکل لگ رہا ہے دیکھنا اس کا اجر بھی اتنا ہی خوبصورت ہوگا۔ بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تم کہتے ہو کہ درد اب برداشت سے باہر ہو گیا ہے، اللہ پاک کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو یا اللہ میں ہی کیوں، وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ پاک جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ ہر وہ چیز جس کے لیے تم نے صبر کیا وہ تمہارے نصیب میں ہی آئے گی، اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر، لمبی سانسیں کھینچ کر، تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے آسمان کی طرف دیکھے تو وہ جبت کی کس انتہا پر ہوتا ہے۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہش کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ان ساری باتوں کے پیچھے بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، اس لیے پریشان ہونا چھوڑ دو، اللہ پاک سے جڑے رہو، اللہ پاک سے مدد مانگتے رہو اور صبر سے اللہ پاک کے فیصلوں کا انتظار کرو۔ صبر اور بندے کی طرف کبھی جایا نہیں جاتی، اور اس بات پر بھی یقین رکھو کہ اللہ پاک کا وعدہ سچا ہے، بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دعائیں جتنا صبر لیتی ہیں وہ اتنی ہی زیادہ رنگ لاتی ہیں، تو اپنے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی مایوسی کی وجہ سے جھکنے نہ دینا، کیونکہ اللہ پاک کبھی کبھی صبر کی آخری حد آزماتا ہے اور اس کے بعد صرف ایک ہی مرحلہ آتا ہے اور وہ ہے اس کا کن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی بلندی 4 باتوں میں، حکم الہی پر،
صبر کرنا، تقدیر پر راضی رہنا، اخلاص کے ساتھ اللہ پاک پر توکل کرنا اور پروردگار کا فرما بردار رہنا، کوئی ذرا سی دیر پر ہو گیا مایوس اور کسی کے حصے میں بار بار سر کو جھکانا لکھ دیا گیا، کسی کو 4 قدم کے فاصلے پر مل گیا اور کسی کے نصیب میں لمبا سفر لکھ دیا گیا۔ راہیں جدا ہو جانے سے مقدر جدا نہیں ہوتے، اور جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے جو کسی کی بھی نظر سے گزرے نہیں ہوتے، حالات سمجھ سے باہر ہو جائیں تو معجزے بھی عقل سے باہر کے ہوتے ہیں۔ جو شخص صبر کی چادر اوڑھ لیتا ہے وہ عزت اور بزرگ پاتا ہے۔ رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو دور کر دے اس پر صبر کرو۔ جب ہمارے صبر کی آخری حد ٹوٹ جاتی ہے تب اللہ پاک فرماتا ہے کن، تو وہ بس ایک بار کہے گا بس ہو جا، اور وہ ہو جائے گا۔ سورہ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے خوبصورت عطا پائیں گے۔ جب تم محسوس کرنے لگو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ پاک کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ پاک کی جانب سے آنے والے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو۔ اللہ پاک کسی بھی حال میں تمہیں دربدر نہیں ہونے دے گا۔ جب ساتھ ہو اللہ پاک کا تو کیسی مشکل، کیسا غم، جب یقین ہو اللہ پاک پر تو کیسے شکوے، کیسے سوالات۔ وہ اللہ پاک جو رات کے اندھیرے میں بھی ایک گہرے پتھر کے نیچے چلتی ہوئی چھوٹی سی چیٹی کے بارے میں بھی باخبر ہے، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ جو تمہارے دل میں ایک خواہش ہے وہ رب اس سے واقف نہیں؟ تم جھومتے پھرو گے جب تمہاری برسوں پرانی دعائیں بھی رنگ لے آئیں گی۔ ہمت پر ہارو، دعا مانگتے رہو تب تک جب تک جواب نہیں مل جاتا۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہا کو لے آئے تو یقین رکھو کہ آزمائش اب ختم ہونے والی ہے، اور پھر ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر جھولی پھیلایا کرتے تھے۔ جب تم ناممکن حالات میں بھی اللہ پاک کا در نہیں چھوڑتے تب وہ تمہیں اپنے معجزوں سے نوازتا ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ پاک کو سنائی دیتا ہے۔ تم صبر کی انتہا پر ہو تو سنو، اس کی مدد بس پہنچنے والی ہے۔ تمہارے بہائے ہوئے آنسو اس نے قبول کر لیے ہیں، تمہارا سجدوں میں اس کو پکارنا اس سے پسند آ گیا ہے۔ وہ بس اب راضی ہو گیا ہے تم سے۔ تمہارا نصیب اب بہت جلد بدلنے کو ہے۔ تمہاری بے رنگ زندگی میں اب وہ رنگ بھرنے والا ہے۔ اب تمہارا گھر بھی خوشی کے پھولوں سے مہک جائے گا۔ یقین کرو تم اپنی دعاؤں کی قبولیت پر۔ جلد دیکھو گے جب آپ کچھ بھی نہ بدل سکے تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اس ذات کے سوا کوئی بھی آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ ایک منصوبہ تم بناتے ہو اور ایک منصوبہ وہ بناتا ہے۔ جب تم اس کی منصوبہ بندی پر یقین نہیں رکھتے تو وہ تمہارے منصوبے میں بھی تھکا دیتا ہے، اس لیے نہیں کہ تمہیں تکلیف بلکہ اس لیے کہ تم جان سکو کہ اس سے زیادہ دانا اور حکمت والا منصوبہ ساز کوئی نہیں۔ کوئی بات نہیں اگر تم آج بالکل ٹوٹے ہوئے ہو، دل شکستہ ہو، نہ کوئی گناہ نہیں، ہاں بس مایوس مت ہونا، وہ رب تمہیں آزما رہا ہے، تمہیں سزا نہیں دے رہا، اس نے تمہاری مشکل کے ساتھ آسانی بھی رکھی ہے۔ تمہارے مسائل کا حل تمہیں ابھی نظر نہیں آ رہا، مگر ایسا نہیں ہے کہ کوئی حل موجود ہی نہیں۔ ہر چیز اپنے وقت پر سلجھ جائے گی، ہر زخم سے وہ شفا دے دے گا، بس تم اس کی ذات سے تعلق بنائے رکھنا۔ ہر کام آسان وہی کر دے گا، وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔ اگر برا وقت ہو تو صبر کر لیجئے، وقت اگر اچھا ہو تو شکر کیجئے۔ چیزیں خراب ہوتی ہے پہلے سے زیادہ بہتر ہونے کے لیے۔ ان آزمائش کے بعد اللہ پاک کا معجزہ ہے تمہارے لیے۔ جب تم صبر کرو گے تو راستے خود تمہارا رب بنائے گا۔ اس نے کہا ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو جب رب ساتھ ہے تو اس سے زیادہ خوشی کی بات، حوصلے کی بات تمہارے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ کبھی ایک دفعہ ممکن ناممکن کی حد سے باہر نکل کر اپنی کوئی چیز اللہ پاک سے مانگ کر تو دیکھو، جلد نہ صحیح دیر سے ہی صحیح ضرور دے دی جائے گی۔ سورہ یوسف مثال ہے، کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں میں تمہارا حصہ لکھ دی جاتی ہیں۔ ایک بار جب عشق اللہ پاک کے سامنے بہنے لگے اور ہاتھ مانگنے کے لیے اللہ پاک کے آگے اٹھنے لگے تو پھر اللہ پاک کبھی ان ہاتھوں کو لوگوں کے آگے پھیلانے نہیں دیتا اور نہ ان آنکھوں کو کسی کے سامنے تر ہونے دیتا ہے۔ رب کے فیصلے محض تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ بے شک زیادہ وقت گزرنے پر تکلیف سہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جتنا زیادہ تم صبر سے کام لوگے اس کا پھل اتنا ہی دگنا کر کے دیا جائے گا اور اس ساری تلخیوں کا متاوع کر دے گا جس کے کڑوے گھونٹ تم ہنس کر پی گئے تھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے میری رحمت سے نا امید مت ہونا، یہ چیزیں تمہارے لیے مشکل ہیں لیکن تمہارے اللہ پاک کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ وہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کن فیکن ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کے بارے میں جیسا گمان کرو گے ویسا پاؤ گے۔ جس نے تمہارے
तुम्हारा नसीब लिखा है वो दोबारा लिखने की भी ताकत रखता है। तो दुआ करते रहो और यकीन रखो, फिर देखो कैसे तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे नसीब के सफ़े पलटते हैं। तहज्जुद का सजदा हर किसी को नसीब नहीं होता। तहज्जुद लाडली इबादत है और अल्लाह पाक के लाडलों को ही नसीब होती है। तहज्जुद में मांगी गई दुआ रद्द हो जाए यह तो सरासर नामुमकिन सी बात है। तुम उसे मनाने के लिए अपनी नींद कुर्बान करो और वो ना माने यह तो नामुमकिन सी बात है। अगर अल्लाह पाक तुम्हें वहां तक नहीं लेकर गया जहां तुम जाना चाहते थे तो यकीन रखो बेहतर होगी वो जगह जहां वो तुम्हें अपनी मर्जी से ले जाएगा। नामुमकिन है तुम्हारा सब्र तुम्हें उस मुकाम तक ले जाए जहां तुम सिर्फ सोचो और तुम्हें नवाज दिया जाए। जो अल्लाह पाक को दुनिया से पहले रखता है अल्लाह पाक भी फिर उसे दुनिया से पहले रखता है। अल्लाह पाक को मोहब्बत का मरकज बना लो, फिर देखो कैसे सारी मोहब्बतें भाग कर तुम तक पहुंच जाएंगी। अल्लाह पाक की ही मोहब्बत का पहला और आखिरी हकदार है। बीच की सारी मोहब्बतें तो बस चंद लम्हों की कहानी है। हम कहते हैं कि अल्लाह पाक तो हमसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, तो वो हमें आजमाइश ही क्यों देता है। हम कहते हैं कि अल्लाह पाक तो जानता है कि हमें किस चीज की ख्वाहिश है, तो इंतजार ही क्यों करवाता है, बिन मांगे क्यों अता नहीं करता। जरा सोचिए, आप अगर यह मामूली सी आजमाइश भी नहीं आती आप पर तो आप अल्लाह पाक से कैसे जुड़ पाते। अगर दुआ नहीं होती तो अल्लाह पाक से हम कलाम कैसे हो पाते। अल्लाह पाक मुख्तलिफ जरियों से आजमाता है, कभी लेकर तो कभी देकर, लेकिन याद रखिएगा आजमाता उन्हीं को है जिन्हें अपने कुर्ब से नवाजना चाहता है। पता है इंसान कब बेसुकून होता है, जब वो अपने सुकून का मरकज इंसान को बना लेता है, जब वो अपनी खुशियों की उम्मीदें इंसान से लगा लेता है। क्योंकि सुकून का मरकज कभी भी ना तो इंसान हो सकता है और ना ही यह दुनिया। जिंदगी कभी कभार तुम्हें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं। पहला यह कि हकीकत से भागते रहो और दूसरा यह कि अल्लाह पाक की रजा में राजी रहो। तो तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि अल्लाह पाक की रजा में राजी हो जाओ। खुद को ऐसी तकलीफों में मुब्तला करना छोड़ दें। यह दुनिया भरोसे के काबिल नहीं है, क्योंकि दुनिया बनाने वाला खुद कह रहा है कि यह धोखे का घर है। फिर भला हम कैसे इस दुनिया की मोहब्बत पर यकीन कर सकते हैं। हमें यह जिंदगी सिर्फ इसलिए मिली है कि हम अल्लाह पाक को राजी करें। अपनी मंजिल सिर्फ अल्लाह पाक को बनाएं, जिसे ख्वाहिश पूरी करने में लज्जत है। अल्लाह पाक के लिए अपनी ख्वाहिश कुर्बान करने की लज्जत उससे हजारों गुना बढ़कर है। जैसे अपनी मनपसंद चीज पा लेने में मजा है, अल्लाह पाक के लिए उस मनपसंद चीज को कुर्बान कर देना ही असल जीत है। सब्र इंसान को तब आता है जब वो अल्लाह पाक पर बेपनाह यकीन रखता है। जब इंसान यह जान लेता है कि अब जो होगा और पहले जो कुछ भी हुआ उसमें अल्लाह पाक की रजा थी, फिर दिल मुतमईन सा हो जाता है। फिर कोई चीज पहले की तरह तकलीफ नहीं देती, बस एक अजीब सा सुकून मिल जाता है। यह दुनिया एक इम्तिहान है, यहाँ हम अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं गुजार सकते। हालात कभी हमारी तबीयत के मुताबिक होंगे तो कभी खिलाफ, तो हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए हमें, क्योंकि जिसने हमें पैदा किया है वो खूब जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। तुम अल्लाह पाक को अपनी चाहत बना लो, वो फिर तुम्हें हर चाहत से लातलब कर देगा। तुम उस पर अपना यकीन पुख्ता कर लो, वो फिर तुम्हें किसी की जरूरत नहीं बढ़ने देगा। और सोचो, जिस शख्स ने अल्लाह पाक के हर फैसले पर सर झुकाना सीख लिया और सब्र कर लिया, उसे फिर दुनिया की कौन सी चीज तोड़ सकती है। बस लोगों का डर खत्म हो जाता है और उनकी बातें दुख नहीं देती, क्योंकि तब दिल यह सोच कर मुतमईन हो चुका होता है कि अल्लाह पाक काफी है। हर चीज आरजी है, अगर खुशी का मौसम नहीं रहा तो गम का मौसम भी नहीं रहेगा। और एक बात, दुआएं कभी भी रद्द नहीं होती, बस कभी कभार अल्लाह पाक हमारा सब्र आजमाता है कि मेरा बंदा मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। और कुछ दुआएं तो होती ही इतनी प्यारी हैं कि अल्लाह पाक को अपने बंदे पर इतना प्यार आता है। अल्लाह पाक जब तुम्हें अपने करीब लाने का इरादा बांध लेता है तब वो सबसे पहले तुम्हारा दिल अपनी जानिब मोड़ता है। वो तुम्हारे दिल को तब तक तोड़ता है जब तक तुम्हारा दिल उससे जुड़ नहीं जाता, और फिर जब तुम टूट कर उससे जुड़ जाते हो तो वो तुम्हें ऐसे सुकून से भर देता है जो तुम्हारी रूह को ठंडा कर देता है। जिसने रब के लिए झुकना सीख लिया वही इल्म वाला है, क्योंकि इल्म की पहचान आजीज है और जाहिल की पहचान तकब्बुल है। हर किसी के पास सब कुछ नहीं होता। जो लोग जितने मुकम्मल नजर आते हैं उतने ही मुंतजर होते हैं मौजजों के, लेकिन पता है वो मुकम्मल और मुतमईन क्यों नजर आते हैं, क्योंकि उन्होंने अल्लाह पाक से अपने ताल्लुक चट्टानों की तरह मजबूत रखे होते हैं। उन्हें यकीन होता है वो दुआओं में रोने वाले होते लोग क्या कहते हैं उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। सब्र रखो कि अल्लाह पाक जानता है तुम किस कुर्ब से गुजर रहे हो, वो जानता है तुम्हारी हर दबी सरगोशी को, वो तुम्हारे हाल से गाफिल नहीं है। यह मुश्किल वक्त तुम्हें अल्लाह पाक से मिलाने आया है। बताओ, जब तुम अकेले रह गए थे
सब ने साथ छोड़ दिया था तो उस वक्त किसने हाथ थामा? कौन सुकून बनकर दिल में उतरा? किसने जीने का हौसला दिया? हाँ वही अल्लाह पाक, सिर्फ वही तो है। किसी भी चीज के लिए अल्लाह पाक से बर्दाश्त नहीं, बल्कि हमेशा सब्र मांगा करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक हमें कोई तकलीफ देता है तो वो कहता है कि तुमने मुझसे बर्दाश्त मांगी थी तो अब उसे बर्दाश्त करके दिखाओ। इसलिए अपने रब से बस सब्र मांगा करें। बेशक वो सब्र करने वालों के साथ है। जो अल्लाह पाक को चुन लेता है अल्लाह पाक उसे चुन लेता है। वो इतना पाक है कि जिसे चुनता है उसे पाक कर देता है। इश्क वालों को अपनी राह में कुर्बान होने के लिए चुनता है, तो मोहब्बत वालों को अपनी रजा में राजी रहने के लिए और सब्र करने वालों को अपनी राह में आजमाइश से गुजार कर पाक होने के लिए चुन लेता है। यकीन की एक डोर टूटती है तो रब ने हमें दूसरी डोर से फौरन जोड़ देता है। हम थक कर रुकते हैं तो वो चलने की एक नई वजह दे देता है। वो हमेशा हमारे साथ रहता है, आजमाइश के साथ भी और आजमाइश के बाद भी। मोमिन को कभी रब की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, हालात कितने भी खराब क्यों ना हो। याद रखो, हर कोई तुम्हें ठुकरा सकता है, मगर एक तुम्हारा रब है जो कभी नहीं ठुकरा सकता, चाहे तुम्हारे गुनाह रेत के जर्रों के बराबर क्यों ना हो। तौबा ऐसा दरवाजा है जो मौत की हिचकी तक खुला रहता है। दुआ ऐसा अमल है जो तकदीर को मार दे सकता है। और जमीर एक ऐसा साथी है जो हमेशा हक की राह दिखाता है। अल्लाह पाक से रुजू करने में कैसी झिझक, उसके पास गुजरे हुए कल की माफी भी है और आने वाले कल का इनाम भी। वो तो बड़ा गफूर रहीम है। जिंदगी में हर परेशानी का एक ही हल है, सिर्फ अल्लाह पाक से बात करें, अल्लाह पाक से मांगे, अल्लाह पाक पर छोड़ दें, अल्लाह पाक पर भरोसा करें, अल्लाह पाक से फिर कहें और कहते रहें। आँख की नमी बहुत बड़ी रहमत है, यह अल्लाह पाक से आपका राब्ता बढ़ा देती है। शुक्रगुजार हो जाएं उन लोगों का जो आपको आंखों की नमी अता कर गए। शुक्र अदा करें उस तकलीफ का जिसने आपकी आंख को पुरनम कर दिया। जो दरवाजे अल्लाह पाक हमारे लिए खोल देता है, उन्हें चाहकर भी कोई हम पर बंद नहीं कर सकता। कौन है इतनी ताकत वाला जो अल्लाह पाक की रहमतों, बरकतों, इनायतों और मोहब्बतों को हम तक आने से रोक सके? कोई नहीं। दिल घबराए तो बात कर लिया करे, अल्लाह पाक से परेशान ना हुआ करे। या नमाज उठाए और रब से राब्ता करे, दोनों जहानों के रब से बात करे, अपना दिल हल्का करे, सब कह दे जो दिल में है, बयां कर दे, एक एक बात कह दे अपने अल्लाह पाक से। सिर्फ एक दुआ की तो दूरी है, हाथ उठा लो, मांग ले अपने रब से, सिर्फ अल्लाह पाक ही से, तो आप बिला झिझक हर बात कह सकते हैं। किसी और चीज की तो जरूरत ही नहीं, उसके लिए बस आपका दिल, आपके जज्बात और सुनने वाली अल्लाह पाक की जात। बस एक दुआ आपको अल्लाह पाक से मिलवाने के लिए काफी है। मत दूर जाया करें उस अजीम जात से, और अगर दूर भी हो जाएं तो वापस आ जाया करें। उसके दर के दरवाजे ना कभी बंद हुए हैं ना कभी होंगे। जब तक जिंदगी है वो दर खुला है आपके लिए। एक वही दर है जो आपका मुंतजिर है। लौट आए अपने रब की तरफ, वो आपका इंतजार कर रहा है। अल्लाह पाक तो मोहब्बतों का बादशाह है, तो फिर जिसने खुद मोहब्बत को बनाया है उसके लिए तुम्हारी मोहब्बत को तुम्हें वापस लौटाना भला क्या मुश्किल। जिसके एक कुत ने इतनी कहानियां मुकम्मल कर दी, फिर वो कैसे तुम्हारी कहानी को अधूरा रहने दे सकता है। उसका एक नाम अलवदूद है भी है, यानी देने वाला, फिर वो कैसे तुम्हें खाली हाथ वापस जाने दे सकता है। जो बेजुबान चींटी की खामोशी भी नजरअंदाज नहीं करता, वो तुम्हारी हिचकियां लेती हुई आवाज को कैसे अनसुना कर सकता है। बस वही तो है, सुनता है, वो सुनेगा, जरूर सुनेगा। अल्लाह पाक हमें सब्र की आजमाइश से गुजारकर हमारे यकीन का इम्तिहान लेता है। वो जो हमारी बेशुमार नाफरमानियों के बावजूद हमें माफ करने वाला है, वो हमें सजा नहीं देता, हमें अपनी तरफ रुजू करवाने के लिए उस सब्र के सफर से रोशना करवाता है जिसकी मंजिल अपने रब की रबत होती है। और हमारी हर आजमाइश पर किया जाने वाला सब्र हमारे और भी दर्जे बुलंद तरीन कर देता है। सब्र इंसान को तब आता है जब वो अल्लाह पाक पर बेपनाह यकीन रखता है। जब इंसान यह जान जाता है कि अब जो होगा और पहले जो कुछ भी हुआ उसमें अल्लाह पाक की रजा थी, फिर दिल मुतमईन सा हो जाता है। फिर कोई चीज पहले की तरह तकलीफ नहीं देती, बस एक अजीब सा सुकून मिल जाता है। कभी नहीं होता ऐसा कि अल्लाह पाक कोई चीज तुमसे ले ले और उसके बदले तुम्हें बेहतर चीज से न नवाजे। और यह भी हो सकता है कि जो उसने तुमसे लिया है उसे ही तुम्हारे हक में बेहतर बनाकर तुम्हें वापस दे दे। उसकी हिकमत, उसकी मसलियत तुम नहीं समझ सकते, लेकिन वो तुम्हारी तकलीफ से खूब वाकिफ है। वो बस आजमाता है कि मेरा बंदा मेरी मोहब्बत के लिए किस हद तक जाता है। दुआएं, इल्तिजा वो सब संभाल कर रखता है और फिर उन जरियों से हमें नवाजता है कि हम देखते रह जाते हैं। जब वो दोनों जहानों का खालिक होकर हमारे यकीन
की लाज रख लेता है तो क्या हम उसकी मोहब्बत की लाज नहीं रख सकते, उसकी रजा में अपना दिल मुतमईन नहीं कर सकते? जब वो हमारे लाज उठाता है तो क्या हम उसके एक हुक्म पर सर नहीं झुका सकते? उस जैसी मोहब्बत तो कोई नहीं कर सकता, मगर हाँ, हम उसकी चाहत का एहतराम तो कर सकते हैं, उससे मोहब्बत करने की कोशिश तो कर सकते हैं। तो फिर क्यों ना अब उसके हुक्म का इंतजार किया जाए और अब उससे मोहब्बत की जाए जिसकी मोहब्बत कुर्बान है हम पर। तो क्या हुआ अगर वो एक फूल ना मिल सका? हो सकता है सारा बाग तुम्हारा मुकद्दर हो और मेरे रब को दिल खूब मुतमईन करने आता है। हालात की तारीखियों से ना घबराओ, अल्लाह पाक पर भरोसा रखो और याद रखो सबसे ज्यादा बारिश तारीख तरीन बादलों से ही बरसती है। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। अपने इस तड़पते दिल को समझा दो कि अल्लाह पाक के फैसले हमेशा ढेरों खुशियां लाते हैं। बस तुम सब्र करो और फिर अपने ऊपर अल्लाह पाक की इनायतों को बरसता देखो। मायूस वो होता है जो अल्लाह पाक पर यकीन नहीं रखता और महरूम वो होता है जो अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। अल्लाह पाक का जिक्र अपने हाथों की उंगलियों पर किया करो, क्योंकि अंधेरी कब्र में यह रोशनी का सबब बनेंगी। दौलत और वक्त दो ऐसी चीज हैं जो इंसान के इख्तियार में नहीं। वक्त इंसान को मजबूर और दौलत मगरूर बना देती है। दुआ अपने लिए मांगना इबादत है और दूसरों के लिए मांगना खिदमत। इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से रब मिलता है। जिसको अल्लाह पाक ने दुआ की तौफीक दी वो कबूलियत से महरूम नहीं रह सकता। जिसको अल्लाह पाक ने इस्तगफार की तौफीक दी वो मगफिरत से महरूम नहीं रह सकता। जिसको अल्लाह पाक ने शुक्र की तौफीक दी वो नेमत से महरूम नहीं रह सकता। अल्लाह पाक का जिक्र रूह और जिस्म में हमहंगी और रब्त पैदा करता है और यह रब्त जब कायम हो जाता है तो बेचैनी से निजात मिल जाती है। रब तो रिज्क देता है कीड़ों को पत्थरों में भी, तो क्यों परेशान होते हीरे मोती के चक्कर में? उड़ जा आसमान में या लगा होता समंदर में, तुझे उतना ही मिलेगा जितना लिखा है तेरे मुकद्दर में। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत पता है क्या है? तुम बदला न लो, माफ कर दो उसे जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी है। मायूस मत होना अल्लाह पाक से, सबसे ज्यादा मायूस को लम्हा में उम्मीद भेजता है। सबसे भारी बारिश तारीख तरीन बादलों से ही होती है। वो अता करे तो शुक्र उसका, वो ना दे तो मलाल नहीं। मेरे रब के फैसले कमाल हैं, उन फैसलों में जवाल नहीं। दुनिया में वही लोग सर बुलंद और कामयाब रहते हैं जो तकब्बुल को दूर फेंक देते हैं और आजीज की चादर ओढ़ लेते, जिसकी वजह से अल्लाह पाक की रहमत उनको ढांप लेती है। हमारे फैसलों से ऊपर भी एक फैसला होता है और वो अल्लाह पाक का फैसला होता है और उससे बेहतर हमारे लिए कोई भी फैसला नहीं हो सकता। अल्लाह पाक के हर फैसले पर मुतमईन रहें, क्योंकि अल्लाह पाक वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि अल्लाह पाक वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। लोग जितना भी दिल दुखाएं, यह याद रखा करें कि जब अल्लाह पाक के बंदे हमें तोड़ते हैं तो उनका तोड़ना हमें अल्लाह पाक से जोड़ता है। तकलीफ देने के बाद जताई गई मोहब्बत और नजरअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत कोई मायना नहीं रखती। जब तुम्हारा नफ्स और शैतान तुम्हें वसवसे दिलवाए कि तुम्हारी दुआओं का कोई फायदा नहीं होने वाला, तो खुद से कहो जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं सिर्फ अपने परवरदिगार को पुकारता रहूंगा। मुझे यकीन है कि मैं अपने परवरदिगार से मांगकर कभी महरूम न रहूंगा। अगर दुनिया फतेह करना चाहते हो तो अपना लहजा धीमा रखो, क्योंकि लहजे का असर तलवार से भी ज्यादा होता है। हर शख्स को आप राजी नहीं रख सकते। यह काम चमचे और मुनाफिक लोग ही कर सकते हैं। बाज़मीर सच्चे और बाउसूल लोगों से अक्सर लोग नाराज और नाखुश होते हैं। हमेशा उन लोगों का चुनाव करें जिनको इज्जत देने पर वो खुद से बढ़कर आपको इज्जत दें, और यही बेहतरीन लोगों की निशानी है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर करती है। मंजिलों को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। हम हमेशा ना खुश रह सकते हैं और ना दुखी रह सकते हैं। अगर खुशी मुसलसल हमारी जिंदगी का हिस्सा बनी रही तो कभी न कभी फिर भी बेशक होने लगती है। उसी तरह अगर गम हमेशा जिंदगी का हिस्सा बना रहे तो जीने की चाह खत्म हो जाती है। तभी अल्लाह पाक सबके लिए सारे दिन एक जैसे नहीं रखता। कभी वो गम जिंदगी में लाता है, कभी खुशी, ताकि हमें बेसुकूनी ना हो, ताकि हम जिंदगी से उकता ना जाएं। और दुनिया तो का नाम है, यह आरजी है, मुश्किल नहीं। यहाँ बस हम अपने हिस्से का वक्त काटने आए हैं और कुछ भी बातें सीखने आए हैं, अल्लाह पाक की पहचान करने आए हैं। उसने इंसान को मजबूत तो बहुत बनाया है, लेकिन यह जो सीने में दिल रख दिया, सारा मामला उस पर डाल दिया है कि चाहो तो यह पत्थर से भी सख्त और ना चाहो तो शीशे से भी ज्यादा नाजुक, चाहे तो लम्हा सफर लम्हों में तय कर दे और ना चाहे तो एक कदम पर थका दे। लेकिन जानते हो थकावट हमेशा दो तरह की होती है। एक वो थकावट
थकावट जब नींद की जरूरत होती है और दूसरी वो थकावट जब सुकून की जरूरत होती है। नींद की थकावट तो सो लेने के बाद दूर हो जाती है, लेकिन सुकून की थकावट खत्म होते होते सदियां गुजर जाती हैं। और यह थकावट बस तब दूर होती है जब इंसान अल्लाह पाक की तरफ वापस पलटता है, जब अल्लाह पाक के फैसलों पर खुश होना सीख जाता है, जब अल्लाह पाक से मोहब्बत करना सीख जाता है, जब अल्लाह पाक को ढूंढ लेता है। वरना कितना भी सो लो, कितना भी आराम कर लो, कितना कुछ क्यों ना हो अब आपके पास, लेकिन अल्लाह पाक नहीं तो किसी का होने सुकून नहीं देगा। थकावट तो बस अल्लाह पाक ही दूर कर सकता है। जब कभी हिम्मत हारने लगो तो बस दिल को इतना समझाना कि जो हो रहा है उसमें अल्लाह पाक की रजा है और जो होगा उसमें भी अल्लाह पाक की रजा होगी। पता है बेशक तब होते हैं जब हम अल्लाह पाक पर उस तरह से यकीन नहीं रखते जैसे हमें रखना चाहिए। फिर हमारा दिल बेचैन रहता है और हर चीज बेमायने उदास सी लगती है। इसलिए एक लंबी सांस लो और गुजरा हुआ अच्छा वक्त याद करो। और अगर याद करने को गुजरा हुआ अच्छा वक्त भी नहीं मिल रहा तो आंखें बंद करके एक दफा उन तमाम मराहल पर नजर दौड़ाओ जिन पर अल्लाह पाक ने तुम्हें तुम्हारे कहने से पहले ही संभाल लिया था। उसकी हिकमत याद करो, उसकी नेमतें याद करो, उसकी ताकत याद करो। रात का दिन में और दिन का रात में बदलना याद करो और आखिर में उसका वादा याद करो कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर अंधेरी रात के बाद चमकता हुआ सवेरा है और उसे अपने करीब महसूस करो। भूल जाओ कि कोई सड़क का फासला भी है, बस वैसाख होठों पर उसका नाम तारी कर लो। फिर देखना कि सड़क का फासला भी खत्म हो जाएगा और वो कैसे सुकून बनकर तुम में समा जाएगा। अल्लाह पाक ने हमें बहुत बार बता दिया है कि जिंदगी में किसी न किसी चीज से कभी न कभी हम जरूर आजमाए जाएंगे। क्या लोगों ने यह गुमान कर रखा है कि उनके सिर्फ इस दावे पर कि हम ईमान लाए हैं और हम इन्हें बगैर आजमाए हुए छोड़ दें। मुश्किलें क्यों आती हैं? ताकि तुम अल्लाह पाक की तरफ रुजू कर सको। तो क्या तुम्हें यह लगता है कि इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ तुम्हें ही मुश्किल इस वजह से क्यों आई? तो फिर तुम यह कैसे सोच लिया कि इतनी बड़ी उसकी बनाई हुई दुनिया लोगों में वो तुम्हें भूल गया? क्यों लगा तुम्हें यह कि वो तुम्हें देख नहीं रहा? वो हम सबसे मोहब्बत करता है और बहुत मोहब्बत करता है। वो खुशी गम उन चीजों से अपनी तरफ रुजू करवाता है। तो फिर तो सिर्फ चंद कदम ही तो दूर है कि तुम उससे दुआ करो। अगर लगे कि कोई जवाब नहीं मिला तो फिर उसकी तरफ रुजू करो। अगर सब्र करना होगा तो तुम्हें सब्र आने लगेगा, क्योंकि अल्लाह पाक तुम्हारे साथ है। तुमने उसको पुकारा है। बेशक अल्लाह पाक ही तुम्हारा मददगार है और वही सबसे बेहतरीन मदद करता है। अल्लाह पाक के रास्ते पर चलना इतना आसान नहीं। उस रास्ते पर हमारा तकलीफ, आजमाइश और सब्र से इम्तिहान लिया जाता है, क्योंकि जब हम अल्लाह पाक के रास्ते पर चलते हैं तो शैतान को एक चीज बहुत नापसंद है कि कोई बंदा अल्लाह पाक के करीब हो। वो हमें तरह तरह के वसवसे और ख्यालात दिलाकर उस रास्ते से भटकाना चाहता है। लेकिन जो लोग अल्लाह पाक पर कामिल यकीन रखते हैं और भरोसा रखते हैं, वो शैतान के भटकावे में नहीं आते और ना वो मायूस होते हैं। वो जानते हैं अल्लाह पाक अगर देने में देर कर रहा है तो उसमें बेहतरी होगी। मुश्किलें हल हो जाया करती हैं, रास्ते निकल आते हैं। बस यकीन कामिल होना चाहिए अल्लाह पाक की जात पर। अल्लाह पाक ही हर गम को मिटाता है और खत्म करता है। वो यकीन रखने वालों को बिखरने नहीं देता, फिर उनकी जिंदगी में आसानियां पैदा करता है। उसकी मोहब्बत तो हर किस्म से पाक है। वो तो यह चाहता है तुम नेक राह इख्तियार करो। शैतान का ठिकाना तो जहन्नुम है, इसलिए वो तुम्हें उसके साथ बचाना चाहता है। तुम्हारा दिल वही है जो उसके सिकंजे से आजाद करता है, इसलिए उसकी तरफ लौटना ही तुम्हारे लिए बेहतरीन होगा। इंतजार की भी 3 सूरतें होती हैं। या तो अल्लाह पाक इसलिए इंतजार करवाता रहता है कि वो यह वक्त सही नहीं है तुम्हें वो देने का जो तुम कब से मांग रहे हो, या तो वो चीज तुम्हारे लिए बेहतर नहीं जिसका तुम कब से इंतजार कर रहे हो, या तो अल्लाह पाक को तुम्हारा मांगना पसंद आ गया है, इसलिए वो चाह रहा है मेरा बंदा मुझसे फरियाद करता रहे। इंसान जब सच्चे दिल से तकलीफ में अल्लाह पाक को पुकारता है तो अल्लाह पाक बड़े प्यार से अपने बंदे को सुनता है। जब अल्लाह पाक को अपने दिल का हाल सुनाता है और उससे मदद की तलब करता है तो अल्लाह पाक भी उसकी तकलीफों को जड़ से मिटा देता है, क्योंकि अल्लाह पाक कभी अपने बंदों को तकलीफ में नहीं देख सकता। दुआएं तो नसीब का कलम होती हैं, और अगर तुम चाहते हो कि कलम तुम्हारी मर्जी से तुम्हारा नसीब लिखे तो तुम अपनी मांगी दुआओं पर यकीन रखो और मायूस ना हो कि यह कबूल क्यों नहीं हो रही या कब होंगी, क्योंकि अल्लाह पाक दुआ का इख्तियार ही तब देता है जब वो चाहता है यह कलम तुम्हारे नसीब का लिखा मिटाकर उसे तुम्हारे मुताबिक लिख सके। जब इंसान सब कुछ अपने रब पर छोड़ता है तो वो रब भी अपने बंदे के यकीन को कायम कर रखता है। हाँ, कुछ आजमाइश भी लेता है कि देखो मेरा बंदा मुझसे खफा तो नहीं होगा, मगर जब हम उसे राजी
राजी ही रहते हैं तो वो हमारे सब्र का फल हमें देता है। तो यकीन रखें दुआएं रायगा नहीं जाती, बेहद कीमती शय है जिसे अगर पूरे दिल से अपनी हस्ती बस्ती में बसाकर अमल में लाएं तो यकीन जाने कि मोजज़े रोनुमा होंगे, जिंदगियां बदल जाएंगी, मुसीबतें टल जाएंगी, तूफानों के रास्ते बदल जाएंगे, कहकशा से रास्ते निकल आएंगे। यह कीमती शय हर दिल में धड़कती है, हर रूह में बसती है और ये आपकी दुआ है। फिक्र ना करें, उदास ना हो, दिल छोटा ना करें, दुआ करें, हर सांस करें, सुनने वाला करीब हो तो बताने वाले को दूर नहीं होना चाहिए। खुद को कभी तन्हा बेबस और महसूस न करें। दुआ आपकी कदर और मंजिल और आपकी इमदाद है कि आपकी कश्ती और आपका सहारा है। क्या अल्लाह पाक के यहाँ किसी चीज की कमी है? बिल्कुल नहीं। तो क्या अल्लाह पाक को सब देने से फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या वजह है हम दुआ मांगते हैं तो साथ शक भी बांध लेते हैं, एक अरसे के बाद सिकवे सवाल भी उठा लेते हैं। जब दुआ की अर्जी डालें तो बिल्कुल आजीज होकर डालें कि मैं किसी भी मामले का न अहल हूँ, न मेरा इख्तियार है, यह तेरी ही जात है जो हर इख्तियार पर इख्तियार रखती है। तू नवाजने वाला है और तेरा फैसला ही बेहतरीन है। अगर आपकी आजमाइश सख्त से सख्त हो रही है तो मुमकिन है आप मोहब्बत की मंजिलें तय कर रहे हैं, मुमकिन है आप महबूब बंदों की फहरिस्त में गर्दाने जाने लगे हो। तकलीफ मिलती ही इसलिए है ताकि हम समझ सके कि जो दर्द हमें अपनी बसात से ज्यादा लगता है दरअसल हमारे हौसलों की हुदो गिरोह है और हम उसे पहचान नहीं पाते। बस तकलीफ की जरा सी शिद्दत पर डर जाते हैं। क्या लोगों ने यह समझ रखा है कि वो सिर्फ यह कह देने से छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उन्हें आजमाया नहीं जाएगा। हम इंसान बहुत जल्दबाज होते हैं, हम चाहते हैं कि जो मांगा है वो हमें फौरन से मिल जाए, लेकिन हम भूल जाते हैं कि अल्लाह पाक ने हर चीज का एक खास मखसूस वक्त मुकर्रर कर रखा है। ना उस वक्त से पहले कुछ हो सकता है और ना उस वक्त के बाद। जैसे बीज को एक बड़ा दरख्त बनने में सैकड़ों साल लग जाते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे ही आप बीज बोते वैसे ही दरख्त बाहर निकल आता, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि वो अल्लाह पाक का मुकर्रर करदा वक्त नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही करिश्मे तो एक दुआ पर भी तो हो सकते हैं, लेकिन जिस वक्त पर अल्लाह पाक ने उन्हें आपकी मदद के लिए भेजना है वो वक्त अभी नहीं है। सुबह सब्र के साथ इंतजार करो। अल्लाह पाक किसी भी मेहनत का मुआवजा नहीं रखता। यकीनन इस इंतजार के बाद आपको आपके सब्र का पूरा सिला दिया जाएगा। तो बस अच्छी तरह सब्र करो। लोग ना तो आपका मसला है और ना ही आपकी दुआओं का, क्योंकि अल्लाह पाक ने आपको देने के लिए लोगों की राय नहीं मांगनी। लोग कुछ भी नहीं है, यह मामला सिर्फ आपका और अल्लाह पाक का है। तो जैसे अल्लाह पाक ने आपके मामले में लोगों से मशवरा नहीं लिया, वैसे ही आपने भी अल्लाह पाक के मामले में किसी से भी मशवरा नहीं लेना। आपने दुआ करनी है, आप करें। आपने एक ही दुआ बार बार करनी है, आप बार बार करें। आप अल्लाह पाक से तब तक मांगे जब तक आपको सुकून नहीं मिल जाता। सबको भूल जाएं क्योंकि अजर तो अल्लाह पाक ही ने आखिर में देना है। नाजरीन, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा और आपने हमारे चैनल साजिमा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह।